میں جو ہے یہاں پر پورا تناؤ کا ماحول تھا, لوگ بھاگ رہے تھے ادھر ادھر, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار ہوا کیا ہے. زخمی بھی کچھ لوگ تھے, ان کو ہم نے کسی کو گھوڑے پر بٹھایا, کسی کو ATV بائکس پہ بٹھایا, اور کچھ لوگوں کو جو ہے زخمیوں کو ہم نے کندھے پہ اٹھا کر یہاں ہسپتال میں شفٹ کیا. جب ہم نے سنا ہے یہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے, انسان سب لوگ ہیں, یہ حیوان تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. منظر کیسا تھا وہاں پر جب یہ آتنکوادیوں کے دوبارہ حملہ کیا؟ اب یہاں اس وقت ہم وہاں بھی نہیں تھے جب ہم نے یہ بات سنی تھی, تو منظر یہاں پہ جب ہسپتال میں جن کو شفٹ کیا ان کا جو حالت تھی وہ بہت خراب تھی. ہم بہت دکھی ہے, بہت دکھی ہے, انسانیت کا قتل کیا ہے. دیکھو ہم لوگ یاترا کندھے پہ لے کے جاتا امرناتھ, بہت پیار ہے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ, بہت پیار ہے, ہم کندھے پہ لے کے جاتا ہے. معصوم یہاں پر گھومنے کے لیے آئے تھے, جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم, ان نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کشمیر جا کر جو ہے انجوائے کریں گے, اور جو ہے یہاں پر اپنے دکھ درد جو ان کے گھر میں ہو سکتے تھے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ دور ہو جائے گے. لیکن ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کشمیر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا, اور کوئی نہ کوئی بندہ لڑواتا ہے ہم کو. یہ نہیں ہونا چاہے, ہم کو لڑنا نہیں چاہے. اب ہمارا بھائی ہے, اب سردار جی ہے, اب بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, میں مسلم ہے, آپ سکھ ہے, ہم بھائی ہے, خون ایک ہی ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہے. روزانہ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਇਸਨ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? میرا نام رئیس احمد لون ہے اور میں پہلگام میں رہتا ہوں سر. ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ہے؟ جب ہم نے سنا, ایکچولی میں فوٹوگرافی کرتا ہوں اور میں چندرواڑی میں اس ٹائم تھا, اور جیسے ہم نے ایسا کچھ سنا تو ہم ترنت وہاں سے نکل کے آ گئے اور مارکیٹ پہنچ گئے. لیکن مارکیٹ میں جو ہے یہاں پر پورا تناؤ کا ماحول تھا, لوگ بھاگ رہے تھے ادھر ادھر, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار ہوا کیا ہے. کچھ لوگ بول رہے تھے کہ آپس میں گھوڑے والوں کا جھگڑا ہوا ہے, کچھ لوگ بول رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا. لیکن دھیرے دھیرے جب اس کا خلاصہ ہوا کہ ایسا کچھ ہوا ہے, یہاں جو ہمارا اسپاٹ ہے, پکنک اسپاٹ ایک ہے بائسرن, وہاں پہ ایسا ہوا ہے, تو یہاں پر ہم لڑکے جمع ہوئے جس میں ہمارے پونی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, ہمارے فوٹوگرافر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ATV بائکس کے پریزیڈنٹ تھے. تو ہم 5-10 لونڈے جو ہے اٹھ کے وہاں پر چلے گئے بائسرن ویلی میں. اور اس ٹائم ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر آتنکوادی ہے یا کوئی اور ہے تو ہماری جان کا بھی خطرہ ہوگا, لیکن ہم نے سوچا نہیں, ہم جائیں گے, ہم دیکھیں گے آخرکار وہاں پر ہوا کیا ہے. اور جیسے ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے جن کو شوٹ ہوا ہے تو وہ پڑے ہوئے تھے, اور لیکن زخمی بھی کچھ لوگ تھے, ان کو ہم نے کسی کو گھوڑے پر بٹھایا, کسی کو ATV بائکس پہ بٹھایا, اور کچھ لوگوں کو جو ہے زخمیوں کو ہم نے کندھے پہ اٹھا کر یہاں ہسپتال میں شفٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ٹائم یہی پریفرنس دی کہ جو لوگ زخمی ہیں ابھی تو ان کو ہی جو ہے بچایا جائے. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ فوٹوگرافی کا کام کرتے ہیں. اور جب یہ آتنکوادیوں کے دوارا حملہ کیا گیا, بے قصوروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا, تو آپ تک کب یہ خبر پہنچتی ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زخمیوں کے پاس کب پہنچتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے ہمیں یہاں پر کنفرم ہوا کہ بائسرن ویلی میں جو ہے کچھ حملہ ہوا ہے, تو اسی ٹائم جو ہے ہم ترنت ہی نکل کر یہاں سے بائسرن ویلی کی طرف چلے گئے, اور کم سے کم 10-15 لڑکے تھے جو ہم سب سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے, جس میں ہمارے پونی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, ٹیسٹنٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, اور ATV بائکس کے وہ لڑکے تھے. تو ہم وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ہم نے زخمیوں کو دیکھا, جو وہاں پر زبردست پینک تھے وہ ٹورسٹ, وہ ہمیں بھی بول رہے تھے کہ آپ بھاگو, لیکن ہم بھاگے نہیں, ہم نے ان کو اٹھایا, کسی کو کندھے پہ اٹھایا, کسی کو ATV بائکس پہ بٹھایا, کسی کو گھوڑے پر بٹھایا, اور ان کو جو ہے ہسپتال لے کے آ گئے. لیکن تناؤ کا ماحول بہت ہی زیادہ تھا اس ٹائم, لوگ پینک تھے, لوگ ادھر بھاگ رہے تھے, آگے ننگے پیر بھاگ رہے تھے پورے. کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟
लोग जो टूरिस्ट वहां से भाग के आ रहे थे उन्होंने यही कहा कि वहां पर हमला हुआ है, अंधाधुंध गोलियां चली है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे घर वाले जिंदा है, कुछ के घर वाले पीछे रह गए थे, कुछ के आगे रह गए थे। उन्होंने यही कहा कि पता नहीं कि वहां पर क्या हुआ आखिरकार। लेकिन हम वहां पर पहुंचे, हमने देखा जो भी जख्मी था, हमने पहली प्रेफरेंस उन्हीं को दी कि ताकि इनको ही बचाया जाए, इनको उठाकर जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। और हमने पहला वही काम किया कि उन जख्मियों को उठाकर जो है अस्पताल में भेज दिया। मंजर कैसा था वहां पर जब ये आतंकवादियों के द्वारा हमला किया? अभी हम उस वक्त हम वहाँ पे नहीं थे जब हमने ये बात सुनी थी। तो मंजर यहाँ पे जब अस्पताल में जिनको शिफ्ट किया उनका जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। जी सर। तो व्यापार पे भी इसका असर पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं जो बंद कर दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए सर, जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 में जब कोविड स्टार्ट हुआ और कोविड के बाद जो है टूरिस्ट जब यहाँ पर आना शुरू हो गया तो टूरिस्ट का फ्लो जो था बहुत ही ज्यादा था और लोगों को लगा कि चलो स्थिति तो ठीक हो गई है अब, और टूरिस्ट आने लगे और लोग व्यापार में जुड़ गए। और बहुत सारे लोगों ने जो, खासकर अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम के लोगों ने जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया है कि उनको पता है कि 90s की बात अगर हम करें तो 90s से आज तक पहलगाम में कभी भी ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया है जिससे जो है यहाँ का फ्लो कम हुआ होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 370 जब हुआ तो 370 में कम से कम कश्मीर बंद था, लेकिन पहलगाम उस टाइम भी चल रहा था। अगर हम बुरहान वानी की बात करेंगे तो बुरहान वानी के टाइम में भी जो स्थिति थी कश्मीर की, तो लेकिन पहलगाम एक ऐसी जगह थी जहां पर टूरिस्ट जो है आते थे, जाते थे, और हम जो थे खुद टूरिस्ट को यहाँ से उठाकर जो दूसरी जगह पे ले जाते थे, घुमाते थे। और ऐसा हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। और लोगों ने जो है बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। लोगों ने इसलिए इन्वेस्टमेंट किया था कि टूरिस्ट जो है यहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट का फ्लो था और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी हमारा जो दिल है वो ज्यादा रो रहा है, इसलिए रो रहा है कि मासूम की जान चली गई है। जो मासूम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, जिनको ये भी नहीं पता था कि उनने ये तय किया था कि हम कश्मीर जाकर जो है एंजॉय करेंगे और जो है यहाँ पर अपने दुख दर्द जो उनके घर में हो सकते थे वो यहाँ पर आकर जो है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन उन बेचारों को ये भी नहीं पता था कि कश्मीर में ऐसा कोई वाकया पेश आएगा और उनके जो है घर वालों के लिए एक दुख की खबर पहुंचेगी। और उसके साथ साथ पूरे कश्मीर के लोग जो है वो रो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन हो गए हैं इस वाकया को, लेकिन हर दिन हर शाम को जो है कश्मीर के लोग, खासकर पहलगाम के लोग, पूरे कश्मीर के लोग जो है एक कैंडल मार्च निकालते हैं। इसीलिए निकालते हैं कि हर कश्मीरी चाहता है कि जैसे उनके घर वालों को दर्द है वही दर्द हम भी फील कर रहे हैं आज इस वक्त। क्योंकि एक तो वो हमारे मेहमान थे, ऊपर से हमारी रोजी रोटी जो है इन लोगों के साथ जो है जुड़ी हुई थी। और इसी रोजी रोटी को जब कोई लात मारता है और आप खुद समझ सकते हो कि कितना दुख होता है। और उसी दुख में जो है आज हम गुजर रहे हैं। और पहलगाम के लोग जो है फूट फूट कर इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका रोजगार तो खत्म हुआ ही, लेकिन इसलिए भी रो रहे हैं कि इनके किसी के घर के जो चिराग है वो भी बुझ गए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है, जिन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई वाकया पेश किया है, उनको पूरी तौर जो है सरकार पकड़े और उनको ऐसी सजा दे ताकि ये इबरतनाक एक उनके लिए बन जाए कि दोबारा ऐसा कोई कुछ भी कश्मीर में ना हो, पूरे कश्मीर में क्या हिंदुस्तान में ना हो। पहले कभी जिंदगी में ऐसा मंजर पहलगाम में देखने को मिला? वही मैं कह रहा हूँ सर, 90s की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे जो बाप है या हमारे दादा है उनसे हम सुनते आ रहे हैं 90s से जो है मिलिटेंसी, आपको पता है 90s में कितनी मिलिटेंसी थी। लेकिन पहलगाम की अगर हम बात करें तो पहलगाम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर 2008 में या 2009 में जो है यहाँ पे अमरनाथ जब यात्रा चल रही थी उस टाइम यहाँ पर बर्फबारी हुई थी। लेकिन उस बर्फबारी में जो है बहुत सारे यात्रा फंसे हुए थे। लेकिन पहलगाम के लोगों ने, जो बुजुर्ग है, लोंडे लड़के हैं, जवान है, सब निकल के आ गए और उनको जो है वहां से उठा के जो है यहाँ पर अपने घरों में रखा, अपने मस्जिदों में रखा। उस टाइम पूरे लंगर लगाए कश्मीरियों ने ताकि जो यात्रा है यहाँ पे, यात्रा पहले तो इतना टूरिस्ट फ्लो नहीं हुआ करता था, लेकिन यात्रा पे हमारा पूरा डिपेंड रहता था। उस टाइम जो है हमने पूरे यात्रा को अपने घर में रखा।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। क्या नाम है जी? मोहम्मद जबर मागरे। मैसन घाटी में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, बेकसूरों को मार दिया, आप उस वक्त वहीं थे? पानी थे, यहाँ स्टैंड में थे। जब हमने सुना है ये इंसानियत का कत्ल होता है, इंसान सब लोग है, ये हैवान थे जिन्होंने ये हरकत की है, इसमें हम बहुत मजम्मत करते हैं जिन्होंने ये मामला अंजाम दिया है। हम बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, इंसानियत का कत्ल किया है। देखो हम लोग यात्रा कंधे पे लेके जाता अमरनाथ, बहुत प्यार है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, बहुत प्यार है, हम कंधे पे लेके जाता है, कंधे पे लेके जाता है। जब 96 में यहाँ पे वो बाढ़ आया था, बारिश का बाढ़ आया था, हमने अपने घरों में बिठाया है प्यार से। जो लोग हम लोग खाना खाते हैं उनको भी खिलाया है। ये नहीं समझ लिया हमने ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है, हम भाई है, आपस में भाई भाई है। आप काम क्या करते हैं? हम चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं यहाँ पे। काम पे असर पड़ा इस आतंकवादी हमले के बाद? देखो ना, ये देखो ना पहलगाम में क्या हालात है, पूरा देखो ना क्या हालात है यहाँ पे, खाली पड़ा है यहाँ पे, बहुत दुख है। अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं बहुत लोगों को, जो हमारे लड़के वहां पढ़ रहे हैं उनके साथ, उन बेचारों ने ये नहीं किया, कश्मीरी लोगों ने ये नहीं किया है। अपनी टांग पे कोई कुल्हाड़ी मार सकते हैं, जैसे किसी का तेल का पंप होता है, कोई जलाना चाहते हैं अपने पंप को, कोई नहीं जलाना चाहते अपने पंप को जिससे रोजगार चलता है। अपनी टांगों को कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे सर, ये मसला है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो वहाँ पे लड़के पढ़ते हैं उनके साथ ये सलूक मत कीजिए। हमने बहुत देखा है, मोबाइल में देखा है, ये वहाँ पे लड़की को मारता है, वो नहीं होना चाहिए। हम आपस में भाई भाई हैं, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। मगर ये मामला नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम, ये कोई ना कोई बंदा लड़वाता है हमको, ये नहीं होना चाहिए, हमको लड़ना नहीं चाहिए। अब हमारा भाई है, अब सरदार जी है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं मुस्लिम है, आप सिख है, हम भाई भाई है, खून एक ही है, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे बहुत असर पड़ता है, जो हमारा आने वाला नस्ल है उन पे असर पड़ेंगे। ये क्या मामला है? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲगाम ਦੀ? कुछ नहीं है सर, सारा कुछ बंद है, सारा बैठा हुआ है, सारे घरों में बैठे हुए हैं, और क्या मातम छाया हुआ है पूरे एरिया में। दुख है यहाँ की आवाम को, पहलगाम की? बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा। निहत्तों पे वार किया है, मतलब बेकसूर पे, वो बेचारे घूमने आए थे यहाँ पे, उन पे वार किया है, बहुत ज्यादा दुख है। पहलगाम की आवाम ने कभी सोचा था कि इस तरह हमला कर दिया जाएगा दहशतगर्दों की तरफ से? कभी भी नहीं सोचा था सर, कभी हुआ ही नहीं यहाँ पे ऐसा, और यहाँ के लोग ऐसी सोच के नहीं है बस। आपकी कोई अपील भी है, जो अलग अलग स्टेट्स में लोग रहते हैं जो यहाँ पर आते थे घूमने के लिए? अपील तो यही है, यहाँ आइए, फिर से यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रहिए, बाकी क्या हम कर सकते हैं। काम पे क्या असर पड़ा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं होटल्स भी बंद हैं, बहुत सारी दुकानें भी बंद हैं, और जो टूरिस्ट के लिए गाड़ी थी वो भी पार्किंग में खड़ी है। बिल्कुल काम तो पूरा बंद ही हुआ है सर, यहाँ डिपेंडेड पूरा 100% टूरिस्ट पे ही है, अदरवाइज यहाँ पे कोई और काम नहीं है। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਗਾਮ।